اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ حکومت نے ماہ رمضان میں کم آمدنی والوں کو بڑا تحفہ دے دیا۔ فی خاندان امداد پروگرام کا اعلان کر دیا۔ رمضان پیکج بذریعہ ڈیجیٹل والیٹ دیا جائے گا۔ رمضان ریلیف پیکج کے لیے شارٹ کوڈ ٹیٹا 9 استعمال کیا جائے گا۔ تمام شادی شدہ افراد کو بہت بہت مبارک ہو۔ اگر آپ کے پاس سم اور شناختی کارڈ موجود ہے تو گھر بیٹھے اپنی سم اور شناختی کارڈ کے ذریعے رمضان پیکج کی اپلائی کریں اور حکومت کی جانب سے رمضان پیکج کی 10,000 اور 13,000 روپے کی امداد حاصل کریں۔ بہت ہی آسان سا طریقہ کار ہے۔ اگر آپ لوگ اس طریقہ کار پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو اہل بھی کیا جائے گا اور آپ کو 10,000 روپے اور 13,000 روپے کی پیمنٹ بھی مل جائے گی، کیونکہ پہلے حکومت کی جانب سے پرانے سروے کی بنیاد پر لوگوں کو اہل کیا جا رہا تھا۔ جن لوگوں کا بے نظیر پروگرام کا سروے مکمل تھا یا پھر جن لوگوں کا پنجاب حکومت والا PSCR سروے مکمل تھا، صرف ان لوگوں کو پیسے مل رہے تھے۔ اب حکومت کی جانب سے نئی رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ گھر بیٹھے آپ سب لوگ اپنی رجسٹریشن کر سکتے ہیں اور ان رمضان پیکجز میں اہل ہو سکتے ہیں۔ بس آپ نے رجسٹریشن کا طریقہ کار سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور گھر بیٹھے اپلائی کرنی ہے۔ بالکل کہیں پر جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی اور آپ کے اکاؤنٹ میں حکومت کی جانب سے یہ پیسے بھیجے جائیں گے۔ اور جیسا کہ کافی سارے لوگوں کو 9999 سے رمضان پیکج کی پیمنٹ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، 13,000 روپے کی رقم کے میسج آ رہے ہیں۔ یہ آپ کو سکرین پر بھی میسج دکھایا جا رہا ہوگا کہ پہلے شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد بینک HBL اور آگے لکھا ہوا ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر رمضان پیکج کے 13,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ رابطہ 9999۔ تو یہ آپ لوگوں کو 13,000 روپے HBL کونیکٹ کے اکاؤنٹ میں جاری ہو چکے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے یہ پیمنٹ خود مینج کر سکتے ہیں، کسی دکاندار کو گھر بیٹھے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ریٹیلر ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو یہ اکاؤنٹ میں پیسے لینے کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اگر آپ لوگ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے نہیں لیں گے تو پھر آپ لوگوں کو یہ پیسے نکلوانے کے لیے کسی ایجنٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ تو یہ اکاؤنٹ میں پیسے لینے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نگہبان رمضان پیکج کے کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، پنجاب کی عوام کو ATM کارڈ کے ذریعے 10,000 روپے مل رہے ہیں، تو اس نگہبان کارڈ کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا، کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک یہ نگہبان کارڈ نہیں ملے۔ ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری آ چکی ہے کہ آپ لوگ نگہبان کارڈ کے بغیر بھی 10,000 روپے کی رقم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ 10,000 روپے لینے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم رمضان پیکج کی 13,000 روپے کی رقم لینے کے لیے اپنی اہلیت معلوم کرنے کا طریقہ کار بھی بتائیں گے، اور کافی سارے لوگوں نے پہلے یہ اہلیت چیک کی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ابھی وزیر اعظم رمضان پیکج کے لیے اہل نہیں ہیں تو آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بھی بڑی خوشخبری آ چکی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی جلد رمضان پیکج کی 13,000 روپے کی رقم کے لیے اہل کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نگہبان رمضان پیکج جو کہ پنجاب حکومت کی جانب سے شروع ہو چکا ہے، اس پیکج کی اہلیت چیک کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو مکمل تفصیلات کی جانب بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ لوگوں سے رمضان پیکج کے حوالے سے ایک چھوٹا سا سوال کر رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو رمضان پیکج کے تحت ابھی تک کوئی امداد ملی ہے؟ ہاں، آپ کو اگر 10,000 ملے ہیں تو آپ نے کمنٹس میں 10,000 لکھنا ہے۔ اگر آپ کو 13,000 مل چکے ہیں تو آپ نے کمنٹس میں 13,000 لکھنا ہے۔ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ملا تو پھر آپ نے اس ویڈیو کے کمنٹس میں یہ لکھنا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ باقی رمضان پیکج کی امدادی رقم لینے کا طریقہ کار اور رجسٹریشن کا مکمل طریقہ کار آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل طور پر غور سے دیکھنا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور YouTube چینل سچ فار یو کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو آل پر لازمی سلیکٹ کیا کریں تاکہ آپ لوگوں تک اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر پہنچتی رہیں۔ جی تو اب ذرا غور کیجیے اور ویڈیو میں بتائی گی تمام تر معلومات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو YouTube چینل سچ فار یو پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے رمضان پیکج کے تحت ہر مستحق خاندان کو پیمنٹ ملنا شروع ہو چکی ہے۔ کسی کو 10,000 مل رہا ہے تو کسی کو 13,000 روپے کی رقم مل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب نئے رمضان پیکجز بھی شروع ہو چکے ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے 16,000 روپے کی رقم ملنا شروع ہو چکی ہے۔ KP کی حکومت کی جانب سے 12,000 روپے کی رقم ہر مستحق خاندان کو ملنا شروع ہو چکی ہے۔ اور اس بار عوام کو یہ پیمنٹس تو مل رہی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو زیادہ قطاریں بھی نظر نہیں آ رہی ہوں گی۔ جس طرح پچھلے سال قطاریں نظر آتی تھیں، مفت آٹے تقسیم ہوتے تھے تو لمبی لمبی لائنیں نظر آتی تھیں، تو اب وہ پرانے سسٹم بند ہو چکے ہیں۔ اب بالکل ڈیجیٹل سسٹم آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ کافی سارے لوگوں کو اکاؤنٹ میں پیسے مل رہے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ پیسے لینے کے لیے کہیں پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی۔ اور اسی طرح جن لوگوں کو یہ پیسے اکاؤنٹ میں نہیں مل رہے
और वो लोग अगर अपने पैसे लेने के लिए किसी एजेंट के पास जा भी रहे हैं तो उन लोगों के पास आगे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, वो किसी भी एजेंट के पास चले जाते हैं तो उनको पैसे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से रश मज़ीद कम हो जाता है। काफ़ी सारे एजेंट हर शहर में मौजूद हैं, तो आप लोगों को काफ़ी सारे एजेंट से ये पैसे मिल रहे हैं, जिसमें UBL ओमनी के एजेंट हैं, HBL कनेक्ट, बैंक अल-फलाह और ईजी पैसा, जैज़ कैश के एजेंट से आप लोगों को ये रमज़ान पैकेज की सारी किस्तें मिल रही हैं, चाहे निगहबान पैकेज हो या फिर वज़ीर-ए-आज़म का रमज़ान पैकेज हो। तो इन तमाम रमज़ान पैकेजेस की रजिस्ट्रेशंस के हवाले से सबसे पहले आपको अपडेट करना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि इन रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। तो अभी एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो में कमेंट भी किया है कि क्या ये रमज़ान पैकेज सारे पुराने सर्वे की बुनियाद पर हैं या फिर कोई नई रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। तो जी हाँ, बिल्कुल नई रजिस्ट्रेशन भी हो रही है, पुराने सर्वे की बुनियाद पर भी लोग अहल हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि जिन लोगों के पुराने सर्वे हो चुके हैं वो लोग ज़रा गौर से वीडियो को सुन लें। आगे हम आपको वो भी बताते हैं जो नई रजिस्ट्रेशन करवा के रमज़ान पैकेज हासिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर यह कि जिन लोगों के पुराने सर्वे हो चुके हैं, तो जिन लोगों का बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल है वो सब लोग वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज के 13,000 रुपए की इमदादी रकम हासिल कर सकते हैं। अगर वो लोग मुस्तहिक हैं तो उनको 13,000 रुपए उन लोगों के अकाउंट में जारी किए जा सकते हैं। तो ये 13,000 रुपए की पेमेंट अकाउंट में लेने के लिए आप लोगों ने छोटा सा काम करना है। तो काम यह है कि आप लोगों को याद होगा कि आपने बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे जो करवाया था, तो उस सर्वे में शनाख्ती कार्ड भी दर्ज करवाया था और इसके साथ एक फ़ोन नंबर आपने दर्ज करवाया होगा। तो वही फ़ोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर आप लोगों ने इस अकाउंट में इस्तेमाल करना है। तो अकाउंट आपने उस बैंक का क्रिएट करना है जिस बैंक के थ्रू बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे आपके ज़िला में तकसीम हो रहे हैं। तो ये पहले आप लोगों ने अपने ज़िला के किसी भी बंदे से पता कर लेना है, ख़ास तौर पर जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं तो उनको ये पता होगा कि आपके ज़िला में किस बैंक के थ्रू पैसे मिल रहे हैं, या फिर इसी वीडियो के कमेंट्स में भी आप अपने ज़िला का नाम लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने मुतल्लिका बैंक का वैलेट अकाउंट क्रिएट करना है, ना कि वो अकाउंट जो बैंक में जाके खुलवाना पड़ता है, बल्कि आप लोग अपना वैलेट अकाउंट ऐसे खोलेंगे कि अगर ईजी पैसा के थ्रू पैसे मिलते हैं तो आपने ईजी पैसा को खुद इस्तेमाल करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में आपने ईजी पैसा का अकाउंट क्रिएट करना है। तो इस तरीक़ाकार से आप लोगों का जब वैलेट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपको हुकूमत की जानिब से 13,000 रुपए आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। और यहाँ पे मजीद हम आपको ये भी क्लियर करते चलें कि जिन लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं उन लोगों को 13,000 रुपए नहीं मिलेंगे। उन लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त जो अब मिलने वाली है, इस नई किस्त के साथ ही कोई 2-3 हज़ार रुपए की इजाफी पेमेंट ऐड कर दी जाएगी, क्योंकि इन लोगों के लिए टोटल 10 अरब रुपए का बजट है जो कि 1 करोड़ खानदानों में तकसीम होगा। यानी कि बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे लेने वाले लोगों की तादाद 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ में अगर 1 अरब रुपया तकसीम किया जाए तो ये फी खानदान बड़ी मुश्किल से 1,000, 1,500 या 2,000 रुपए तक की इमदाद जा बनती है। लिहाजा जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें मिल रही हैं वो लोग 13,000 रुपए की किस्त बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा 21 लाख खानदान इजाफी ऐड किए जा रहे हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते, लेकिन उनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल है, तो उनको 13,000 रुपए दिए जाएंगे। और ये 13,000 रुपए उन लोगों को वैलेट अकाउंट में मिल सकते हैं। खासतौर पर ये जो वैलेट अकाउंट खोलने का तरीकाकार मैंने आपको बताया है, ये उन लोगों के लिए है जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल है लेकिन उनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते, तो वो लोग अपना अकाउंट क्रिएट करके 13,000 रुपए की रकम अकाउंट में हासिल कर सकते हैं। बाकी जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं उनको साफ ज़ाहिर बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्त भी मिलनी है, तो उस किस्त के साथ उन्हें ये वज़ीर-ए-आज़म वाला रमज़ान पैकेज जारी कर दिया जाएगा और इसके लिए उनको अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आपको इस पैकेज की अहलियत चेक करने का तरीकाकार बता रहे हैं। तो तरीकाकार बहुत आसान है, आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। पोर्टल ओपन करके इसमें आप लोग अपनी मालूमात चेक कर सकते हैं, अहलियत मालूम कर सकते हैं आया कि आपको वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज मिल सकता है या नहीं। और हाँ, जिन लोगों को अभी ये बताया जा रहा है कि आप वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज से नाअहल हैं, उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि अभी इस पोर्टल में डेटा अपडेट हो रहा है। इस पोर्टल को अभी भी डेवलप किया जा रहा है, तो उम्मीद काफ़ी है कि बहुत जल्द इस पोर्टल में जब मुकम्मल तौर पर डेटा ऐड हो जाएगा तो आप लोगों का नंबर भी आ सकता है, आप लोगों को अहलियत का स्टेटस भी शो हो सकता है। क्योंकि ये पोर्टल अभी 1-2 दिन में ही क्रिएट किया गया है, तो इस पोर्टल में 1 करोड़ 21 लाख खानदानों का डेटा अपडेट करना कोई आसान काम तो नहीं है। इसके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर कोई 5, 7 या 10 लाख लोगों का डेटा अपडेट कर दिया जाता है, तो आप लोगों का डेटा बहुत जल्द अपडेट हो सकता है। अगर आप हकदार हैं तो इंशाल्लाह आपको ये वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज मिलेगा और पोर्टल पर भी आपका डेटा अपडेट हो जाएगा, आपको अहलियत का स्टेटस भी मिल जाएगा। और अब हम आपको ये बताते चलें कि वफाकी हुकूमत के बाद हर सूबाई हुकूमत के अलग-अलग रमज़ान पैकेज हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP के हर सूबे की हुकूमत का अलग-अलग रमज़ान पैकेज है और बहुत बड़ी पेमेंट्स अवाम को सूबाई हुकूमत की जानिब से दी जा रही हैं। तो यहाँ पे आपको पहले ये क्लियर करते चलें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपए के 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, यानी कि आपको निगहबान रमज़ान पैकेज का भी 10,000 मिलेगा, इसके साथ एक
नया प्रोग्राम जिसका नाम है मरियम को बताएं। इस प्रोग्राम के तहत भी आपको 10,000 रुपए की पेमेंट अकाउंट्स के जरिए मिल रही है। इसके लिए आपको निगहबान कार्ड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से 16,000 रुपए की रकम भी मुस्तहिक लोगों को दी जा रही है, वो भी माह रमज़ान का पैकेज है। और इसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से 5 से 10,000 रुपए की एक और इमदादी पैकेज भी है, जो कि बेनज़ीर प्रोग्राम के डेटा के तहत लोगों को दिया जा रहा है। यानी कि सिंध हुकूमत के भी 2 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, एक 5 से 10,000 रुपए और दूसरा 16,000 रुपए का। तो इसी तरह KP की हुकूमत की जानिब से 12,000 रुपए का प्रोग्राम शुरू है। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी 5 से 10,000 रुपए तक की नकद कैश की इमदाद भी है और इसमें मुफ्त राशन का प्रोग्राम भी चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले पंजाब हुकूमत की बात करते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से इस वक्त निगहबान रमज़ान पैकेज बड़े ज़ोर शोर से तकसीम हो रहा है। तमाम इलाकों में निगहबान कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 10 लाख तक ये निगहबान कार्ड तकसीम हो चुके हैं, जिनमें से 4 से 5 लाख लोगों ने अपने 10-10 हज़ार रुपये भी हासिल कर लिए हैं। तो काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके पास अभी ये निगहबान कार्ड मौजूद है और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अभी तक ये निगहबान कार्ड पहुँचे ही नहीं है। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये निगहबान कार्ड की पेमेंट हासिल भी कर ली है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको ये बताते चलें कि जिनको ये निगहबान कार्ड नहीं मिला वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों। उन लोगों को एक तरीकाकार बता रहे हैं कि उस पर अमल करके वो लोग 10,000 रुपए की पेमेंट कार्ड के बगैर भी हासिल कर सकते हैं और इसके साथ साथ निगहबान कार्ड भी इन लोगों को मिल जाएगा। लेकिन ये निगहबान कार्ड इंशाल्लाह 10 मार्च तक तकसीम हो रहे हैं, तो आप लोगों का कार्ड भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो इस कार्ड की अहलियत अभी खुद चेक कर सकते हैं। तो अहलियत चेक करने के लिए आप लोगों को एक नंबर बता रहे हैं, ये हुकूमत का ऑफिशियल नंबर है। इस पर कॉल करके ऑटोमेटिक सर्विस है, इसमें निगहबान रमज़ान पैकेज की अहलियत चेक कर लें। तो नंबर नोट कर लें 08000235, यानी कि 0800023345। इस नंबर पर आप लोगों ने कॉल करनी है। बिल्कुल टोल फ्री नंबर है, कोई पैकेज नहीं चाहिए, कोई बैलेंस नहीं चाहिए, आपकी सिम बिल्कुल खाली है तो फिर भी आपकी कॉल चली जाएगी। कॉल मिलाएंगे और आगे शनाख्ती कार्ड नंबर पूछा जाएगा। शनाख्ती कार्ड नंबर आप टाइप करेंगे, यानी कि कॉल के दौरान डायलर से आप अपना नंबर टाइप करेंगे और कॉल के दौरान ही 4-5 सेकंड में आपको अहलियत बता दी जाएगी। आप अहल होंगे तो आपको बताया जाएगा कि मुबारक हो, आप निगहबान रमज़ान पैकेज में अहल हैं। अगर आप ना अहल होंगे तो आपको कहा जाएगा कि हम माजरत खा हैं, आप रमज़ान निगहबान पैकेज के लिए अहल नहीं हैं। तो इस तरीक़ाकार से निगहबान रमज़ान पैकेज की अहलियत भी चेक की जा सकती है। और इसके साथ साथ अब हम आपको ये बताते चलें कि जिन लोगों को ये निगहबान कार्ड मिल चुके हैं वो लोग निगहबान कार्ड के ज़रिए पेमेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो बड़ा आसान सा तरीकाकार है कि आप लोग अपने करीबी निगहबान कार्ड एक्टिवेशन सेंटर पर चले जाएं, वहां पर आपका कार्ड एक्टिवेट होगा। और इसके बाद किसी भी बैंक की ATM पर चले जाएंगे, वहां से भी आपको 10,000 रुपये बगैर कटौती के, बगैर फीस के मिल जाएंगे। और इसके बाद अगर आप लोग ATM से पैसे हासिल नहीं करना चाहते, आपको तरीकाकार नहीं आता या फिर आपको हिचकिचाहट होती है, झिझक महसूस होती है कि ATM पर कौन जाए और अपनी पेमेंट हासिल करें, तो फिर आप लोग किसी भी एजेंट के पास चले जाएं। UBL ओमनी का एजेंट है, अल्फ़ा एजेंट है या HBL कनेक्ट का एजेंट है। तो इन 3 किस्म के एजेंट्स में से किसी भी एजेंट के पास चले जाएं, वहां से भी आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे और कोई कटौती नहीं हो रही। अगर कहीं पर कटौती हो रही है तो आप लोग शिकायत दर्ज करवाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका कला कमा हो जाएगा। और इस बार पंजाब हुकूमत की जानिब से पैरा फोर्स को भी एक्टिव कर दिया गया है कि अगर कहीं पर कोई एजेंट क्रिप्टो करेंसी कर रहा होता है तो उसको फौरन उठा लिया जाता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अगर कहीं पर कोई ऐसा काम हो रहा है, यानी कि कोई करप्शन हो रही है, कोई कटौती हो रही है, तो इसके खिलाफ आप लोग घर बैठे कॉल कर सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ उस एजेंट का नाम पता बताना है और ये सबूत देना है कि वाकई वहां पर 500,000 रुपए की कटौती हो रही है, तो फिर उस एजेंट के खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। तो जी हाँ नादरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि इस निगहबान रमज़ान पैकेज के अलावा आप लोग हुकूमत पंजाब के एक और रमज़ान पैकेज में भी अहल हो सकते हैं, जिसका नाम है मरियम को बताएं प्रोग्राम। अगर आपको निगहबान रमज़ान पैकेज से इमदाद नहीं मिल रही तो आप फौरी तौर पर इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। ये हेल्पलाइन नंबर आपको बता रहे हैं, ये अपने पास अभी नोट कर लें, 1000 यानी कि 1000 पूरा। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप लोगों ने कॉल करनी है और हुकूमत पंजाब की जानिब से मरियम को बताएं प्रोग्राम के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मुहैया करना है। कॉल के दौरान आप लोग अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, जो मालूमात आपसे ली जाएंगी वो मालूमात आप लोग साथ साथ मुहैया करेंगे, अकाउंट नंबर भी देंगे, तो आप लोगों को 24 घंटे के अंदर 10,000 रुपये मिल जाएंगे। और इस रमज़ान पैकेज के लिए कोई आप लोगों को PSCR सर्वे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका PSCR सर्वे नहीं भी हुआ तो फिर भी आपको ये 10,000 रुपये मिल सकते हैं। ये
ये हुकूमत पंजाब की जानिब से बहुत अच्छा इकदाम किया गया है और आखिरी रोज़े तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। आप सब लोग आपने भी रजिस्ट्रेशन करवाएं, खुद कॉल करें, अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं और अपने करीबी जो गरीब और मुस्तहिक घराने हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि उनको भी ये इमदादी रकम मिल सके। इसके लिए सिर्फ 2-4 चीज़ें चाहिए होती हैं। सिम शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है, ख़ासतौर पर शादीशुदा मर्द है या फिर शादीशुदा औरत है, और साथ में उनका जो अकाउंट नंबर है, इजी पैसा, जैज़ कैश या इस तरह का कोई अकाउंट नंबर भी आप लोगों ने साथ लाजमी देना है ताकि आपकी जो पेमेंट मंजूर हो तो वो फ़ौरन आपके अकाउंट में हुकूमत की जानिब से भेज दी जाए। और इस वक्त ये पेमेंट काफ़ी सारे लोग हासिल भी कर चुके हैं क्योंकि 24 घंटे के अंदर हुकूमत की जानिब से आपको ये पेमेंट भेज दी जाती है। जिनका PSCR सर्वे नहीं हुआ उन लोगों के लिए 4 दिन का वक्त होता है, बाकी जिनका PSCR सर्वे मुकम्मल है उनको 24 घंटे के अंदर पैसे मिल जाते हैं। तो अब हम आपको ये बताते चलें कि इस पैकेज के बाद हुकूमत सिंध की जानिब से रमज़ान पैकेज शुरू है। वहाँ पर 8-8 हज़ार रुपये की 2 किस्तें माह रमज़ान में मुस्तहिक घरानों को मिलेंगी। इसके अलावा 25 से 30 अरब रुपए का जो बड़ा रमज़ान पैकेज है वो भी हर मुस्तहिक ख़ानदान के लिए है। इसमें बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड जो लोग हैं उन लोगों को अहल किया जा रहा है। इसके साथ साथ 1 अरब 60 करोड़ रुपए इस पैकेज के लिए मंजूर किए गए हैं, जिसके तहत 16,000 रुपये हर मुस्तहिक ख़ानदान को दिए जाएंगे। सूबा सिंध के 1 लाख ख़ानदान इसमें अहल होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए बेनज़ीर प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम वाला डेटा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो है कि KP की हुकूमत की जानिब से भी रमज़ान पैकेज शुरू हो चुका है। 12-12 हज़ार रुपये फ़ी ख़ानदान दिए जा रहे हैं। अगर वहाँ की रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो बहुत आसान सा तरीकाकार है। आप लोगों को अपना सिर्फ अकाउंट का IBAN नंबर जो होता है, हर इजी पैसा जैज़ कैश वाला अकाउंट होता है तो उसका भी IBAN नंबर होता है, तो ये IBAN नंबर आप लोगों ने हुकूमत को रजिस्टर करवाना है। इसके लिए आपको अपना शनाख्ती कार्ड और साथ में अपना IBAN नंबर अपने मुतल्लिका यूनियन कौंसिल में मौजूद रमज़ान पैकेज के अमले को जाके रजिस्टर करवाना है। इंशाल्लाह आपका नाम लिस्ट में डाला जाएगा और आपको 12,000 रुपये अकाउंट में मिल जाएंगे। इसके बाद बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी रमज़ान पैकेज शुरू है। वहाँ पर 5 से 10 हज़ार रुपये फ़ी ख़ानदान भी मिलेंगे, मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। मज़ीद इन तमाम रमज़ान पैकेजेस के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन मालूमात आ रही हैं ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए अभी से YouTube चैनल सर्च फॉर यू को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।